What does Jesus say about fasting? यीशु क्या कहता है उपवास के बारे में? Jesus says in that verse that we read in Matthew chapter 6, we see Jesus says, when you fast. देखिए यहाँ पे इस वचन में जब हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु कहता है जब तुम उपवास करोगे, when you fast, जब तुम उपवास करोगे, it means there's a reason for, there is a God desires that we fast at different points in our life. देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उपवास करेंगे हमारे जीवन के दौरान. And when Jesus talks about fasting, और जब यीशु उपवास के बारे में सिखाता there's है, another thing that we're going to be looking at, Matthew chapter 9 verses 14. यहाँ पे मत्ती 9 के 14 में भी हम ये देख पाते हैं. I want you to read that portion of scripture. It says, the disciples of John came to him saying, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? मैं चाहूंगा कि हम सब इसे पढ़ें. मत्ती 9 का 14. यहाँ पे यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? So you see, we are called to fast. देखिए हमसे प्रभु परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उपवास करें. But the disciples, when Jesus was alive, they did not fast. लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जब यीशु के चेले, जब यीशु जीवित था, तब उन्होंने उपवास नहीं किया. And Jesus tells the people, the Pharisees who fast and the disciples of John who fast, he gives them a reason why his disciples don't fast. और यहाँ पे यीशु उन लोगों को जो फरीसी हैं, जो उपवास करते हैं, या यूहन्ना के चेले जो उपवास करते हैं, उनको यीशु एक कारण देता है कि उसके अपने चेले उपवास क्यों नहीं करते. He says two reasons. First reason is the bridegroom is with them. वो यहाँ पे दो कारण देता है. पहला कारण वो कहता है कि दुल्हा उनके साथ है. You read the 15th verse. It says Jesus tells them, listen, the wedding guests cannot mourn as long as a bridegroom is with them, can they? 15वीं आयत में लिखा है, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शौक कर सकते हैं? And then he goes on to say the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. और आगे कहता है, पर वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे. So Jesus was saying that right now when I am here they don't need to fast. तो यीशु ये कह रहा था कि इस वक्त जब मैं इनके साथ शारीरिक रूप में हूँ तो इन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है. I am going. लेकिन मैं जल्दी जाऊंगा. When I go, जब मैं इनसे अलग होकर जब मैं इनको छोड़ के जाऊंगा, then my disciples will fast. उस वक्त मेरे चेले उपवास करेंगे. How many of you say that Jesus has gone from this world? Can I see your hands? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु इस संसार से ऊपर चला गया? What does Jesus say? यहाँ पे यीशु क्या कहते When हैं? I go, जब मैं जाऊंगा then they will तब fast. वे उपवास करेंगे. Jesus has gone. यीशु अभी है नहीं. We are called to fast individually and corporately as a church. तो हमसे प्रभु उम्मीद करता है कि हम व्यक्तिगत रूप में और एक सामूहिक रूप में हम उपवास करें. The bridegroom is no longer here. देखिए दुल्हा अभी यहाँ पे शारीरिक रूप में नहीं है. And so because the bridegroom is not here, we need to fast seeking his presence as much as possible. और क्योंकि दुल्हा इस वक्त यहाँ नहीं है तो हमें उपवास करना ये जरूरी है ताकि हम उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाए. The second thing that he says over there in that portion is this, in the 16th verse. और 16वें आयत में वो दूसरा कारण देता है. He says, the new covenant is not yet come. वो कहता है नया नियम अभी तक नहीं आया. The old covenant is there. वो जो पुरानी वाचा अभी भी है लेकिन नया वाचा अभी तक नहीं है. And because the old covenant is there, that is why you guys are fasting. और क्योंकि पुराना वाचा है इसलिए पुराने वाचे की वजह से आप लोग उपवास करते हैं. And when the new covenant comes, लेकिन जब नई वाचा आएगा that time they will fast in a different manner. उस वक्त उपवास एक अलग रीति से होगा. You read the 16th verse onwards. 16वें आयत से लेकर जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं. To explain the old and the new covenant, Jesus gives two examples over here. पुराना वाचा और नए वाचा को समझाने के लिए यीशु यहाँ पे दो उदाहरण का इस्तेमाल करता है. First example is he says, listen, if there's an old cloth, nobody stitches a new cloth to that old cloth. देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यदि कोई पुराना कपड़ा है तो कोई नया कपड़े को काट कर उसका टुकड़ा लेकर पुराने कपड़े के साथ कोई उसको नहीं सिलता. And he says there's a reason, because if you put a new cloth in the old cloth, when you begin to use it, it'll tear. तो वो कहता है कि जब नया कपड़ा पुराने कपड़े के साथ यदि हम मिलाए
और फिर अगर हम उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो वो फट जाए। You know, during that time, for weddings, people would wear new clothes. उन दिनों में शादियों में लोग नए कपड़े ही पहनते And थे। sometimes those who do not have that much of money, they would wear their special clothes that they have kept aside for such occasions. और जिनके पास अधिक धन नहीं था वो क्या करते थे, ऐसे माहौल के लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े उन्होंने अलग कर कर रखे थे, वही कपड़े वो पहनते And थे। sometimes some of these clothes would get torn. और कई बार वो जो कपड़े उन्होंने अलग कर कर रखे हुए हैं वो कई बार फट जाते थे। Jesus says, listen, we cannot put new cloth onto the old cloth or the tear will get worse. और यीशु ने कहा कि नया एक कपड़ा लेकर पुराने कपड़े के साथ हम उसे मिला नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, वो ज्यादा फट जाएगा। And then he says about the wine and the wine skins. और फिर बाद में वो दाखरस के बारे में समझाता है। He says you cannot put new wine into old wine skins. वो कहता है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। In the olden times, they would put wine in wine skins. वो पुराने समय पे मशके के अंदर वो दाखरस भरते थे। And what would happen? The wine skin would begin to grow so that it can contain and the wine that is being fermented within the wine skin. तो मशके का उसका एक स्वभाव या उसके गुण ये है कि जैसे दाखरस इसके अंदर जब वो दाख मधु बनती जाती है, जब वो बढ़ती जाती है तो ये मशका भी बड़ा होता जाता है। And so once it becomes old, it cannot get, if a new wine is put into it, it will break. तो जब वो मशका पुराना हो जाता है, अगर इसके अंदर नया दाखरस यदि आप डालोगे तो ये और भी बड़ा नहीं हो सकता, ये फट जाएगा। So Jesus says, listen, the disciples fasting right now would be like new cloth in an old, being attached to an old cloth, or new wine being put into old wine skin. तो यीशु उनको समझाता है कि यदि चेले इस वक्त उपवास करें तो उसका वो ऐसा होगा कि नया दाखरस पुराने मशके में डाला जाए तो कैसा होगा वैसा होगा, या तो फिर नए कपड़े को फाड़कर पुराने कपड़े के साथ यदि हम सिल कर रखें तो कैसा होगा, ऐसा एक अनुभव होगा। You see, he says, listen, you disciples, John the Baptist's disciples and the Pharisees, your fasting is part of the old covenant. तो यीशु उनको समझाता है कि आप लोगों का जो उपवास है, आप जो फरीसी है, आप जो यूहन्ना के चेले हैं, आपका उपवास पुराने नियम के अनुसार है। You're fasting because of it is a ritual, it is a right of your religion. आप इसलिए उपवास करते हैं क्योंकि आपका धर्म आपसे ये उम्मीद करता है कि इस समय में, ऐसे समय पे आपको उपवास करना है। आप एक रीति और एक रिवाज के अनुसार आप उपवास But when my disciples fast, लेकिन जब मेरे चेले उपवास it करेंगे will not be with the old cloth, it will not be with the old wine तो skin. वो पुराने मशके के साथ नहीं होगा, वो पुराने कपड़े के साथ नहीं होगा। You know, in the original word for the old cloths is this. जो पुराने कपड़े का जो मूल शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है मूल भाषा में वो ये है, It is cloth that has not passed through the fuller's hands. उसका मतलब ऐसे होता है कि जो एक धोबी या कपड़े को अच्छी रीति से तैयार करने वाले व्यक्ति के हाथों से जो कपड़ा नहीं गुजरा है उसे पुराना कपड़ा कहते थे। In the olden times, they had people called fuller. भरने वाला, Just fuller, just say fuller. पुराने समय पे फुल्लर नाम का, हाँ, धोबी जैसा एक दूसरा एक काम था उसका। And what they would do is they would beat the cloth so that the thick cloth would become compressed and they would be able to have a new cloth. तो ये जो फुल्लर तरह नाम के जो लोग हैं, धोबी जैसा काम था उनका काम क्या था कि पुराने कपड़े को वो मारते थे, मार कर उसका हालत ऐसे हो जाता था कि वो नए कपड़े जैसा बन जाता था। They would beat it, they would stamp on it. वो अपने पैरों से दबाते थे, उसको मारते थे। And so that cloth is what they would use then. और फिर बाद में उस कपड़े को, उसको मारने के बाद उसका जो कपड़ा होता है जो सॉफ्ट हो जाता है, नरम कपड़े को फिर वो इस्तेमाल करते थे। Jesus was saying the new covenant has not yet come. यीशु उनसे कह रहे थे कि नया नियम अभी तक नहीं आया। The body of Jesus had to be broken for the new covenant to come. यीशु का शरीर को तोड़ा जाना, कूटा जाना
की जरूरत थी ताकि नई वाचा शुरू होए या नया नियम शुरू It होए। is because of Jesus' death today we have a new covenant. और क्योंकि यीशु मरा, यीशु के मृत्यु के कारण आज हमारे पास नया नियम है। And so when we fast today, we are not putting wine in old wineskin. We are not putting cloth into old cloth. तो इसलिए आज जब हम उपवास करते हैं तो हम जो है दाखरस को पुराने मशके के अंदर नहीं डालते, हम नए कपड़े को पुराने कपड़े के साथ नहीं मिलाते। We are fasting as part of the new covenant. हम नए नियम के भागी होकर हम उपवास करते हैं। We are fasting not mourning the death of the bridegroom. We are fasting because we are waiting for the bridegroom. हम इसलिए नहीं उपवास करते कि क्योंकि हमारा दुल्हा उठाया वो हमसे अलग हो गया, वह उसकी मृत्यु हो गई। हम इसलिए उपवास करते हैं कि हमारा दुल्हा जल्द आने वाला है। In the Old Testament, when they were fasting, they were crying, they were mourning, they would put cloth, they would put ashes on their head, they would pull off on their beard. There was great mourning. देखिए पुराने नियम में जब लोग उपवास करते थे तो वो रोते थे, उनकी दाढ़ी के बालों को वो खींच के निकालते थे, वो गिड़गिड़ाकर रोते थे पब्लिक में, और वो राख उनके चेहरे पे, उनके सिर पे डालते थे। इस तरह से एक प्रदर्शन के साथ वो उपवास करते In थे। the New Testament, we are the bride engaged to the bridegroom. Our fasting is waiting. और हम जो नए नियम में जब हम उपवास करते हैं, हम जो है हम दुल्हे के साथ मंगनी हो रखी, हम दुल्हन है, तो हम जब उपवास करते हैं हम दुल्हे का इंतजार करते हैं। You know, if you have been engaged for a long period of time, यदि आपकी मंगनी लंबे समय तक हुई है you know what I'm talking about. तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह You रहा हूँ। remember the waiting period, the anticipation that you are waiting for your bride or the bridegroom. आपको याद है उन दिनों में कैसे आप अपने दुल्हे के लिए, अपने दुल्हन के लिए आप इंतजार करते थे। Especially women, they would be fasting and avoiding all kinds of food so that they can fit into that dress. और खासकर महिलाएं हैं वो खाना वो डाइटिंग करना शुरू कर देती है ताकि उनके उस वेडिंग कपड़े के अंदर वो फिट हो जाए। When they were looking at food, they were not tempted. जब वो भोजन को देखते थे तो उनको कोई लालसा नहीं होती थी कि मैं भोजन खाऊं। Because when they see the food, और क्योंकि जब वो भोजन को देखते थे their desire is not for the food. उनकी इच्छा भोजन की तरफ नहीं Their थी। desire is so that they can be as presentable as possible for their bridegroom. तो उनकी इच्छा ये थी कि उनके दुल्हे के लिए वो सबसे अच्छी रीति से तैयार हो जाए। When we fast, we are not crying. जब हम उपवास करते हैं हम रोते नहीं We हैं, are not mourning. हम औरों के सामने दिखाते नहीं We are हैं, not upset. हम उदास नहीं हैं, We are preparing ourselves to meet our bridegroom. हम अपने दुल्हे से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करते Church, हैं। when we look, when the church today fasts, जब आज की कलीसिया उपवास करती and है when we see food, और जब हम उपवास के दौरान जब भोजन को देखते हैं our desire should not be for that food. तब उस भोजन की तरफ हमारी इच्छा हमें खींचनी नहीं चाहिए। Our desire should be to our master and our savior. हमारी इच्छा हमारे परमेश्वर के प्रति, हमारे उद्धारकर्ता के प्रति होनी चाहिए। A bride who is fasting, एक दुल्हन जो उपवास करती है there is great joy and excitement in that person. उसके अंदर बहुत अधिक आनंद और एक्साइटमेंट होता है। And what does this clothing and wine signify? और ये जो है कपड़ा और दाखरस ये किस चीज को दर्शाती When है? you read Matthew chapter 22, 1 to 14, जब आप मत्ती 22 का 1 से 14 जब हम पढ़े, you will see the story of a wedding. यहाँ पे हम एक दृष्टांत को देखते हैं या एक विवाह के दृष्टांत को देखते Jesus हैं। says there was a wedding. यीशु कहता है कि एक ब्याह था, Many people were invited. The friends were invited. अनेक लोगों को बुलाया था उसके लिए, The friends were invited by the host. और उसके लिए अनेक लोगों को आमंत्रण दिया अपने गया था, दोस्तों को बुलाया गया था. उसके मित्रों को बुलाया था, And they all gave excuses they did not come. और उनमें से हर एक मित्र ने कुछ न कुछ कारण दिया और वो उस विवाह So the के नहीं आए। host goes out to the street and calls everybody. तो फिर उसने क्या किया, वो बाहर सड़कों पे जाकर जिसको भी देखा सबको बुलाया, And everybody comes in. और जिसको बुलाया सारे आ गए। The wedding feast was grand. देखिए वहाँ का जो भोजन है बहुत बढ़िया था, Everyone was happy.
सब लोग खुश थे। But the host saw that one person was not wearing a wedding garment. लेकिन जिसने सबको बुलाया था, जो जिसकी विवाह थी, उसने देखा कि जो भोजकर जो एक व्यक्ति तैयार होके बिना तैयार होके आया। One person was not prepared for the wedding. They were not wearing wedding clothes. तो एक व्यक्ति जो है शादी के कपड़े नहीं पहने थे, उसने गंदे कपड़े पहने You थे। see, he accepted the invitation. He came for food. देखिए, वो आमंत्रण को स्वीकार कर भोजन करने के लिए आता है। Because he came for food, he did not care about his clothes. और क्योंकि वो भोजन के लिए आया, उसने ध्यान नहीं दिया अपने कपड़ों But पर। everybody else who came for the wedding, और लेकिन बाकी के हर एक व्यक्ति जो इस विवाह के लिए आए, because they got that grand invitation from the king, क्योंकि उस राजा ने उनको आमंत्रण दिया था, they responded to the king's invitation and not to the food. वो उन्होंने राजा के आमंत्रण की तरफ उनका प्रतिक्रिया था, भोजन की तरफ नहीं था। And so because they were going for the king's marriage, the king's son's marriage, they put on the best clothes. और क्योंकि वो राजा के उस बेटे के विवाह के लिए जा रहे थे, तो वो उत्तम कपड़े पहन कर आए। You know what the host did? आप जानते हो उस व्यक्ति ने क्या He किया? throws him out. उसने इस व्यक्ति को उठाकर, जिसने सही ढंग से कपड़े नहीं पहने थे, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। Clothing signifies preparedness. हमारे जो वस्त्र है वो हमारी तैयारी को दिखाता How है। dressed are we for the occasion? हम इस घटने के लिए या इस विवाह के लिए हम कितने तैयार हैं? Jesus says we cannot put a new cloth onto old cloth. यीशु कहता है नए कपड़े को पुराने कपड़े के साथ We हम नहीं need, जोड़ सकते। we need to be prepared. हमें तैयार रहना When जरूरी है। Jesus comes, जब यीशु आएगा, there will be many people who have been chasing Jesus for food. बहुत लोगों को यीशु ऐसे पाएगा जो यीशु के पीछे सिर्फ अपने भोजन के लिए हुए लिए थे। And because they chase God for food, they will not be prepared for the wedding feast. और क्योंकि यीशु के पीछे हो लेने का उनका कारण उनका सिर्फ रोटी कपड़ा मकान था, वो यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। When we fast, जब हम उपवास करते हैं, we are dressing for the occasion of the king. हम उस राजा के उस विवाह के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। What is the occasion? ये वो जो उस Mocha. वो मौका क्या है? It is the coming of the Lord. वो यीशु के दोबारा Jesus आगमन is है। coming soon. यीशु जल्दी आ रहा And है। when I fast, और जब मैं उपवास करता I हूँ, am saying, Jesus, I am waiting for you. मैं कहता हूँ यीशु मैं तेरे लिए तैयार हूँ। The second example he gives is wine. और दूसरा उदाहरण वो वहाँ पे देता है, वो है दाखरस। What does wine signify? दाखरस किस चीज को Wine दिखाती है? signifies the Holy Spirit. दाखरस जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता Wine है। also signifies the harvest. और दाखरस जो है कटनी को भी दर्शाता है। Ephesians 5 verses 18 it says, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. एफिसियों 5:18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। So there's a comparison of the wine with the Holy Spirit. तो यहाँ पे दाखरस को पवित्र आत्मा के साथ एक तुलना की जाती In है। Acts chapter 2, when the Holy Spirit comes upon the people, those who saw them, they said, these people are filled with the new wine. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आता है और वो जब आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं, तो उनको देखने वाले और लोग आगे कहते हैं कि ये तो सारे पिए हुए हैं, ये मतवाले बन गए So हैं। wine signifies the Holy Spirit. तो जो दाखरस है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। Wine also signifies harvest. लेकिन दाखरस कटनी को भी दर्शाती In है। Amos chapter 9 verses 13, आमोस का पुस्तक 9वें अध्याय का it says, 14वें आयत में, there are 13वें आयत में, it says the mountain shall drip sweet wine and all the hills shall flow with it. और यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह निकलेगा। So wine suggests also a great harvest. तो यहाँ पे एक बहुत बड़े कटनी को ये दिखाती Jesus है। says there is a great harvest coming. यीशु ने कहा एक बहुत ही बड़ी कटनी, बहुत बड़ा फसल तैयार And the है, laborers are few. लेकिन
काम करने वाले लोग कम हैं। And many times we look at all that is happening and we say there is more time for the harvest to come. और हम जब हमारे चारों तरफ जो बातें होती है ये सब को देखकर हम कई बार हमें लगता है कि फसल कटने का समय अब है, अब बाकी है। Jesus says no, it is now, the harvest is right now. यीशु कहता है नहीं, अब समय ज्यादा बाकी नहीं है, कटने का समय अब है। And when we fast, और जब हम उपवास करते हैं, we are praying to see the work of the Holy Spirit हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के काम को हम देखें, in our own lives, हमारे अपने जीवनों में आत्मा के काम को देखें, and also for the ability to respond to the harvest. और साथ ही साथ हम परमेश्वर से एक ऐसे सामर्थ्य को मांगते हैं कि कटनी के समय हम काम कर पाए। Jesus is coming soon, यीशु जल्दी आ रहा है and we need to be prepared for that great harvest. और हमें उस बड़े सफल के कटनी के लिए तैयार रहना We है। need to go out into the world and collect the harvest. हमें बाहर इस संसार में जाकर कटनी को हमें इकट्ठा करना है, फसल को इकट्ठा करना जरूरी है, and that is possible through fasting. और ये उपवास के द्वारा हो सकता है।